Good morning to you all. Hello everyone. I'm back again. And today in second part of this video, I'm going to discuss about 10th form lesson 11, the proposal by Anton Chekhov. In your last video, I wrote on this chalkboard some of the main points which is related to the story. But today in this video, I have written recently basically the new words or the words which is in your lesson vocabulary for realizing you at ease means that कि ये जो एक एफर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपके जो अलग अलग वीडियो में कोशिश मेरी रहे किसी में आपको स्टोरी के लेवल की कुछ चीज़ें रिटर्न में समझा दूँ, किसी में वर्ड मीनिंग्स हो जाए, तो इस तरह से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ. ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड यू हैव टू डू दैट. एंड अनदर वन थिंग यू जस्ट कैन observe from my physical appearance. It is so hot and the sweating is running at this moment. No problem, it doesn't matter today. So here it is, the word meanings as usual. Part second, proposal. Spell it out, speak out. By Jove, by God. Awfully upset, badly disturbed, twitch, sudden jerk. Negligence, a woman's light dressing means gown. State, collective. Wedged in, placed between, in perpetuity, forever. Reckoned, thought. Unfairness, injustice. Implore, request, make head or tail, understand. Put off, postpone. Impudent, rude, discreet. Mower, grass cutter. Give in the neck. This is a phrase for your kind information. Punish. Restrain, control. Excruciating, painful. Give up, loss. Pettifogger, hateful, solicitor. Embezzlement, to appropriate others' money by fraud. Vision-faced, dry and withered. Another one, that is the last one, from show off, shabby woman. From means shabby woman. So now the next, in your last video I left up to here 147 page. Oxen meadows touch your beast words. So on the same page I am going to start the next. Natalia, excuse my interrupting you. Interrupting means व्यवधान, बाधा डालना बीच में, रोकने के लिए मैं माफी चाहती हूँ. You say, आप कहते हो my oxen meadows, मेरे बैलों के जो घास के मैदान, but are they yours, क्या वो तुम्हारे हैं? No, yes, हाँ, mine, मेरे. Natalia, what are you talking about? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? Oxen meadows are ours. Oxen meadow हमारे हैं, not yours, आपके नहीं हैं. Lomo, no, नहीं, mine मेरे हैं. Honor Natalia Stepanova, बहुत ही सम्मानीय Natalia Stepanova, वो हमारे नहीं, हमारे मेरे हैं. Natalia, well, ठीक है, I never knew that before. पहले मुझे नहीं पता था. How do you make that out? तुमने ये सब कैसे जाना? Lomo, how कैसे? I am speaking of those oxen meadows. मैं उन सभी बैलों की चरागाह की बात कर रहा हूँ. Which are wedged in between your birchwoods. Wedged in, here it is. Wedged in means placed between. जो आपके birchwoods के बीच में है. And the burnt marsh और जले हुए marsh. Natalia, yes, yes, they are ours. वे हमारे हैं. No, नहीं, you are mistaken. आपको गलती हो रही है. Your honor, Natalia Stepanova, they are mine. वो मेरे हैं. Natalia, just think, जरा सोचो. Ivan Vasilievich, how long have you they been yours? वो कितने समय से तुम्हारे हो रहे हैं? Lomo, how long, कितना समय? As long as I can remember, जितना मुझे याद हो सकता है. Natalia, really, वास्तव में, you will not get me to believe that. तुम मुझे वो विश्वास नहीं दिला पाओगे. Lomo, what you can see from the documents, तुम जो वो दस्तावेज हैं उनसे देख सकते हो. Honor Natalia Stepanova, Oxen meadows, बैलों की जो चारागाह है. Studious such were once the subject of dispute. Dispute means quarreling. एक बार ये झगड़े का विषय थे. But now everybody knows, हर कोई जानता है that they are mine, वो मेरे हैं. There's nothing to argue about. उसमें किसी बात का विवाद करने की जरूरत नहीं. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. And here it is the meaning of perpetuity. Perpetuity means जो लगातार रहने वाली चीज होती है. In perpetuity, forever, हमेशा के लिए. It's you were once the subject of dispute, but now everybody knows, हर कोई जानता है that they are mine, वो मेरे हैं. There is nothing to argue about. उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं. You see, my aunt's grandmother, आप जानती हो मेरी आंटी की दादी, gave the free use of these meadows, इन चरागाहों का
जो है निःशुल्क प्रयोग करने के लिए दिए थे इन परपेचुइटी मींस फॉर एवर टू द पीसेंट किसानों को ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर तुम्हारे पिता के दादा को इन रिटर्न और बदले में फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर कि उसके लिए वो ईंटें बनाते थे। द पीसेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर और किसान जो है वो तुम्हारे पिता के दादा के थे हैड द फ्री यूज ऑफ जिन्होंने मुक्त रूप से प्रयोग के लिए मेडोज दिए थे फॉर 40 ईयर्स 40 सालों से हैं एंड हैड गोट इनटू द हैबिट ऑफ अब उनकी आदत हो गई ऑफ रिग्रेडिंग देम एज देयर ओन वो उन्हें अपना समझते हैं व्हेन इट हैपेंड दैट जब ये हुआ नतालिया नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट इस तरह से कुछ नहीं है बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर दादा और परदादा reckoned here it means reckoned thought दादा और परदादा उन्होंने सोचा था दादा और परदादा जो है reckoned मींस उन्होंने सोचा था दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श कि उनकी ये जो जमीन है वो बर्न्ट मार्श तक फैली हुई थी व्हिच मीन जिसका अर्थ है दैट ऑक्सन मेडोज वर आवर्स ऑक्सन मेडोज हमारे थे। आई डोंट सी मैं नहीं जानती व्हाट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट इस चीज के बारे में वाद विवाद के लिए क्या है इट्स सिंपली सिली ये तो आम जो है कॉमन वे में सिली मींस फुलिश मूर्खता है। लो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें दस्तावेज दिखा दूंगा नतालिया स्टेप नो ना नतालिया नो नहीं यू आर सिंपली जोकिंग तुम सामान्य रूप से मजाक करो और मेकिंग फन ऑफ मी मेरा मजाक उड़ा रहे हो व्हाट इज सरप्राइज कितनी हैरानी की बात है वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 इयर्स और हमारी लगभग ये 300 सालों से ये जमीन थी एंड देन वी आर सडनली टोल्ड और हमें अचानक ये बताया जाता है दैट इट इजंट अवर की हमारी नहीं है इमाम वेसलविच आई कैन हार्डली बिलीव माय ओन ईयर्स मैं बड़ी मुश्किल से अपने कानों पर विश्वास करेंगे। These meadows aren't worth much to me और ये चारागाह मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं है। They only come to 5 डेसिएंटिन्स ये करेंसी है 5 डेसिएंट्स में मिले थे एंड आर वर्थ perhaps 300 रूबल्स और शायद इनकी कीमत 300 रूबल्स जितनी है बट आई कांट अंडरस्टैंड अनफेयरनेस here it means injustice मैं इस अनफेयरनेस को मैं इस इनजस्टिस को नहीं समझ सकती से कहो व्हाट यू विल जो तुम कहना चाहोगे आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस और मैं कभी भी अन्याय के साथ खड़ी नहीं रह सकती। लो हियर मी आउट तुम यहाँ सुनो आई इम्प्लोर मींस रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ द पीसेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर तुम्हारे दादा के फादर्स ग्रैंडफादर तुम्हारे दादा के जो ग्रैंडफादर थे दादा थे तुम्हारे पिता की जो दादा थे उनके किसान एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू जैसे कि मुझे पहले भी आपको बताने के लिए सम्मान दिया गया है यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माय आंट्स ग्रैंडमदर वो मेरी आंट की दादी के लिए क्या करते थे बेक मींस सेकना और ईंटों को सेका करते थे। नाउ माय आंट्स ग्रैंडमदर और मेरी आंटी की दादी विशिंग टू मेक देम प्लेजेंट और ये उनकी इच्छा थी और वो उनको खुशी मिली थी। नतालिया आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स Here it means the meaning of make head or tail. Make head or tail means understand. I can't make head or tail. I can't understand of all this about aunts. मैं आंट के बारे में नहीं समझ सकती दादा के बारे में और उनकी दादी के बारे में। The meadows are ours. वो जो घास की जो जमीन है डालों वाली वो हमारी है। That's all बस इतना है। लमो हमारी मेरी नतालिया और हमारी यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end आपके पास 2 दिनों के आखिर तक का समय आप इसे प्रूव कर सकते हो। यू कैन गो आप जा सकते हो पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स और अपनी 15 जो तुम्हारी जैकेट्स हैं ड्रेस वो पहन सकते हो बट आई टेल यू दे आर आवर्स परंतु मैं बताती हूँ हमारे दे आर डिस्प्यूटिंग दे आर क्वालिंग एट दैट मोमेंट एज लाइक एज अ चाइल्ड। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन और ना ही मैं अपनी चीज देना चाहती हूँ सो देयर इसलिए वहां नतालिया स्टेपनोवा आई डोंट वांट द मेडोज मुझे चारागाह नहीं चाहता मैं बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल मैं सिर्फ नियमों पर काम की बात कर रहा हूँ नियमों की कार्यवाही की बात कर रहा हूँ। इफ यू लाइक यदि आप पसंद करते हैं आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम मैं उन्हें आपको एक उपहार के रूप दे सकता हूँ। नतालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ मैं खुद तुम्हें वो उपहार बनाकर दे सकते हो बिकॉज़ दे आर माइन वो मेरी है योर बिहेवियर तुम्हारा व्यवहार इमॉन वेसल विच इज स्ट्रेंज अद्भुत है टू सी द लिस्ट कम से कम कहने के लिए अप टू दिस और इस पर वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर और इस पर हमने हमेशा आपको एक अच्छे नेबर के बारे में सोचा है। फ्रेंड एक मित्र लास्ट ईयर वी लेंट यू अवर थ्रेशिंग मशीन हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन उधार दी थी ऑल्दो हालांकि ऑन दैट अकाउंट उस वजह से वी हैव टू पुट अप आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर और हमें हमारी नवंबर तक अपनी जो थ्रेशिंग है पुट ऑफ मींस पोस्टपोन स्थानांतरित वो हमें पोस्टपोन करना पड़ा था बट यू बिहेव टू अस परंतु तुम हमारे साथ व्यवहार करते हो एज इन मानो वी वर जिप्सीज कि हम गडरिए हैं घुमंतु हैं। गिविंग मी माय ओन लैंड मुझे मेरी जमीन दे दो इंडीड वास्तव में नो नहीं रियली वास्तव में दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली वो बिल्कुल भी पड़ोसियों वाला व्यवहार नहीं है। माय ओपिनियन मेरे विचार से इट्स इवन इम्प्यूडेंट हियर इट मींस रूड बहुत ही रूखेपन वाली झगड़ालू रूड बात है।
इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हो, नो मोर देन यू मेक आउट, तब आप ये जान पाए दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, कि मैं दूसरों की जबरदस्ती जमीन छीनने वाला हूं। मैडम नेवर इन माय लाइफ, मेरे जीवन में कभी भी नहीं हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडी एल्स लैंड, किसी की जमीन नहीं जो मैंने छीनी या हड़पी है। एंड आई शुडंट अलाउ एनीबॉडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और ना ही मैं चाहता हूं कि ऐसा करने के लिए कोई मेरे पर किसी भी तरह की दोष मढ़े। क्विकली तेजी से स्टेप टू द कैफे एंड ड्रिंक्स मूव वाटर, और वहां पे कैफे की तरफ जाता है, पानी पीता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, वो मेरे हैं। नतालिया इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दियार आवास, वो हमारे हैं। लमो माइन, मेरे। नतालिया इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं इसे प्रूव करूंगी। आई विल सेंड माई मोवर्स, मोवर्स मीन घास काटने वाले, ग्रास कटर को मैं भेजूंगी आउट टू द मीडोज के बाद दिस वेरी डे, इसी दिन। लमो व्हाट, क्या? माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, और आज ही उसी समय मेरे मोवर्स भी वही होंगे। आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, इन द नेक मीन्स पनिश, गिव इन द नेक मीन्स पनिश, और मैं उन्हें उसी टाइम सजा दूंगा। यू डियर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्लचेस एट हिज हार्ट, और अपने दिल के ऊपर पकड़ता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, वो मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, माइन मेरे। नतालिया प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योरसेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, तुम इतनी कर्कश आवाज में, हॉर्स कर्कश आवाज में अपने घर चिल्ला सकते हो, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। रिस्ट्रेन मींस कंट्रोल, और यहाँ ये कहती तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो। If it wasn't, मैडम यदि ऐसा नहीं था, for this awful excruciating palpitation, excruciating painful, give up loss, excruciating means painful, and now for this awful, और इस हैरानी के लिए excruciating palpitation, excruciating means painful, और palpitation धड़कन, ये दर्दनाक धड़कन। If my whole inside wasn't upset, यदि मेरा ये अंदर पूरा सिस्टम परेशान नहीं था, I would talk to you in a different way, अगर मैं अंदर से परेशान नहीं होता तो तुम्हारे से बात करता, यह चिल्लाता। ऑक्सन मीडोज आर माइन, वो मेरे हैं। नतालिया अवर्स, नो माइन। नतालिया अवर्स, नो माइन, नहीं मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। एंटर चुबुकोव आता है। चुबुकोव, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? नतालिया पापा, प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, इस सज्जन पुरुष को बताओ, हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही, कि वो जो ऑक्सन मीडोज है उसके मालिक हम हैं या वह है? चुबुकोव टू लुमो, लुमो से डार्लिंग प्रिय, द मीडोज आर आवर्स, वो हमारे हैं। लुमो बट प्लीज, परंतु कृपया। स्टेफन स्टेनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? डू बी अ रीजनेबल मैन, एक तर्क, एक सूझशील, एक सोशल व्यक्ति बनो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द मीडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीसेंट, मेरी आंट की दादी ने जो ये मीडोज थी अस्थायी रूप से और फ्री यूज करने के लिए तुम्हारे दादा के किसानों को दिए थे। द पीसेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years, और जो पीसेंट है वो 40 सालों से इसे प्रयोग कर रहे थे। एंड गोट अकस्टम्ड टू इट, और उसकी ये आदत भी हो गई थी। एज ए मानो इट वाज देयर, उनके अपने थे। व्हेन इट हैपेंड दैट, जब ये सब हुआ था। चुबुकोव, एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस, मेरे बहुत ही मूल्यवान, मुझे माफ करना। यू फॉरगेट जस्ट, अभी तुम ये भूलते हो दैट द पीसेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर, कि जो किसान थे उन्होंने तुम्हारी दादी माँ को पैसे नहीं दिए थे। एंड ऑल दैट, बस इतना ही, बिकॉज़ द मीडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि वो जो मीडोज थे वो झगड़े में थे। एंड सो और क्या। एंड नाउ एवरीबडी नोज, और हर कोई जानता है, दे आर आवर्स, वो हमारे हैं। इट मींस, इसका अर्थ ये है दैट यू हैवंट सीन द प्लान, तुमने वो योजना नहीं देखी। लुमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं आपको प्रूव करूंगा कि वो मेरे हैं। चुबुकोव, यू विल नॉट प्रूव इट, तुम इसे प्रूव नहीं कर पाओगे माय डार्लिंग, मेरे प्रिय। लुमो, आई शैल, मैं इसे प्रूव करूंगा। So this is all about the second part for 10th form, lesson name the proposal, in which they all are disputing, quarreling with each other as like as a children. So एक proposal है, marriage proposal। तो क्या लुमो की जो नतालिया है उससे शादी होती है, नहीं होती है, क्या कहानी रहती है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।